ملکہ، ملکہ زینب خاتون، خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ سلامت رہیں ملکہ۔ میں آپ کو سبیہ خاتون سے متعارف کروانا چاہتی ہوں جن کا ذکر کیا تھا میں نے۔ بالکل۔ ان کا تعلق علی زادے خاندان سے ہے۔ ان کے شوہر شمس الدین صاحب بہت محترم ہستی ہیں۔ تشریف رکھیے، آئیے۔ آپ کے خاندان کی تعریفیں سن چکی ہوں، بلکہ آپ کو ایک تحفہ بھی بھیجا تھا میں نے، شاید آپ کو موصول ہو گیا ہوگا۔ آپ کے تحفے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ملکہ۔ فلاحی ادارے میں شامل ہو کر خدمت کرنا میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ میرا دروازہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہے سبیہ خاتون، خاص طور پر آپ جیسے نیک دل لوگوں کے لیے۔ آپ کی نوازش ہے ملکہ۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو ایک نادر تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے یہ؟ قرآن کریم ہے ملکہ۔ میرے شوہر شمس الدین صاحب نے خصوصی طور پر آپ کے لیے تیار کروایا ہے۔ طلائی اوراق سے بنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے سبیہ خاتون، اپنے شوہر شمس الدین صاحب کا میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا۔ جی ضرور ملکہ، وہ بھی محل میں ہیں۔ ابراہیم پاشا محترم سے ملاقات کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو آپ کے شوہر یہ تحفہ ابراہیم پاشا کو پیش کر دیں، انہیں بہت خوشی ہوگی، مجھے یقین ہے۔ ملکہ لیکن یہ تحفہ آپ کے لیے تھا۔ ادارے میں آپ کا شامل ہونا میرے لیے تحفے سے کم نہیں۔ سبیہ خاتون، بہت شکریہ۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ آقا ابراہیم پاشا کے ہمراہ سمندر میں گئے ہیں، کیا اس کی خبر ہے تمہیں؟ وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضرور ابراہیم پاشا کو چکر چلا رہا ہے، اگر انہیں کوئی بھی ضرر پہنچا دی اس نے۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں ملکہ، خضر خیر الدین پاشا بھی ہمراہ موجود ہے۔ ابراہیم پاشا کی اگر ایسی کوئی نیت ہوئی بھی تو وہ اس کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ۔ پاشا کے متعلق لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی ہیں کیا؟ لوگ بہت تیزی سے ان کے خلاف ہو رہے ہیں ملکہ۔ جب عوام ایک دفعہ بھڑک جائے تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دوسرے تک باتیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ ابراہیم پاشا جیسا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا۔ خیر، تم کس وقت جا رہے ہو؟ ابراہیم پاشا نے مجھے فوراً روانگی کا حکم دیا ہے۔ وہ مجھے محل میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ آج یا کل میں جانا ہوگا مجھے۔ رستم آقا، فکر مت کرنا، میں بہت جلد اہم عہدے کے ساتھ تمہاری واپسی کا بندوبست کروں گی۔ میری اولاد مصطفیٰ کی جان لینا چاہیے تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ حکم تم نے دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ کس نے لگایا ہے یہ گھٹیا الزام مجھ پر؟ ابراہیم پاشا نے نا، اسی نے کہا ہے، اور کون ہو سکتا ہے دشمن؟ کہیں آپ نے اس پر یقین تو نہیں کر لیا؟ ابھی کل ہی جس غدار نے آپ کی جان لینی چاہیے اس پہ اعتبار کر لیا؟ اگر یقین کیا ہوتا تو تم میرے پاس نہ ہوتی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ابراہیم پاشا کے اس الزام پر آپ کیسے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ تم دونوں کا یہ فساد کب ختم ہوگا حورم؟ اور کب ختم ہوگی تمہاری دشمنی؟ میرا کوئی گناہ نہیں ہے سلیمان۔ ابراہیم پاشا اپنا جرم چھپانا چاہتے ہیں یقیناً،
सब कुछ आश्कार है। वो हर किसी को अपना दुश्मन बना चुके हैं। उनकी नजर आपके तख्त पर है, बस यही चाहते हैं वो। इसीलिए शहजादे के साथ खुफिया मुलाकात भी की थी, मकतूब भी लिखा था। जाहिर है कि उन्हें तख्त नशी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। शहजादे मुस्तफा पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन इब्राहिम पाशा के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती बिल्कुल भी, क्योंकि उनका दिल इस कदर लालच से भरा हुआ है कि उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है हमेशा के लिए। और तुम हुरम, तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है? सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ नहीं। आका ने इब्राहिम पाशा का हुक्म नामंजूर कर दिया। जिंदान में कैद आदमी का फैसला अदालत करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है रुस्तम आगा। मुझे लगता है कि आका ने अब उस पर बिल्कुल एतमाद करना छोड़ दिया है। पाशा की इजारादारी हौले हौले खत्म हो रही है। अबू सऊद का फैसला इस मामले में बहुत अहम होगा मलिका। अगर इब्राहिम पाशा के खिलाफ फैसला हुआ तो उनकी हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्या वो वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं, बताओ मुझे। काजी साहब किसी के ताबे नहीं। कानून के मुताबिक अगर कोई बादशाह भी हो तो वो उनके हुक्म के बगैर किसी भी इंसान की मौत का फैसला नहीं कर सकता मलिका। रुस्तम आगा, तुमने मुझे खुश कर दिया, बहुत खुश। आपकी नवाजिश है मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। रवानगी कब है तुम्हारी? अल्लाह की रजा से मैं कल रवाना हो रहा हूँ मलिका। आपको और आका को अलविदा कहने आया हूँ। राब्ता किस तरह रहेगा तुमसे? हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। सुंबुल आगा आपको मालूमात देता रहेगा। खूब, तो फिर तुम्हारे रास्ते आसान हो। कोई मसला, कोई जरूरत हो तो खबर कर देना मुझे। जरूर मलिका, मैं हमेशा आपके हुक्म का मुंतजिर रहूंगा। मलिका। सुंबुल आगा, बताओ काजी साहब ने क्या फैसला सुनाया? मलिका, सैफी साहब को सजा सुना दी गई है। इब्राहिम पाशा बरी हो गए हैं। हम कोई भी कदम उठा लें, लेकिन इब्राहिम पाशा का बाल भी बीका नहीं कर सकते किसी तरह हम लोग। वो जादू के हिसार में हो जैसे। जादू से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज और है मलिका, वो ये कि आका उनके पीछे खड़े हैं। इस फैसले के बाद इब्राहिम पाशा अवाम की नजरों में बिल्कुल सच्चे बन गए हैं। उनके मुतालिक जो बातें की गई उन्हें फरामोश कर दिया गया है। अयास पाशा को खबर भेजो फौरन, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, आपको सुन रहा हूँ। अयास पाशा, सूरत हाल बुरी है। इब्राहिम पाशा पहले से भी ज्यादा बाएतबार हो चुके हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता तो वो संभल ही नहीं पाते, जबकि अब उन्हें एक नई ताकत मिल चुकी है दोबारा से। लोग आर्जी तौर पर खामोश हो सकते हैं मलिका, लेकिन वक्त आने पर दोबारा बातें सर उठाएंगी, क्योंकि इब्राहिम पाशा चाहे कुछ भी कर लें, उनके दुश्मन हमेशा उनके दोस्तों से ज्यादा रहेंगे। अयास पाशा, इब्राहिम पाशा के सबसे बड़े दोस्त आका खुद हैं। इसी वजह से वो अब तक सांस ले रहा है। आका पर कभी भी असली चेहरा बेनकाब ना हो सका उसका। मुझे यकीन है कि वो हकाइक पोशीदा रखता है। हम उन्हें मालूम करके आका के सामने ला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मलिका, लेकिन याद रखें, इब्राहिम पाशा निहायत मोहताद आदमी है। वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते,
इब्राहिम पाशा की आंखों से इतना गुरूर झलकता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे दिखाई नहीं देता। मलिका, कैसे है मोहतरम इब्राहिम पाशा, आपके हक में फैसला हो गया, आपको बचा लिया, क्या सुना है मैंने? मुबारकबाद कबूल करें। क्या हुआ? कहीं आपके ख्वाब चकनाचूर तो नहीं हो गए? सारी मेहनत अकारत तो नहीं चली गई आपकी? आप क्या समझती हैं कि मुझे अपनी इन बेतुकी साजिशों से ज़ेर कर सकेंगी? इब्राहिम पाशा, मुझे कुछ ज्यादा ही अजीम ख्याल कर रहे हैं आप। अगर ठोकर भी लगेगी तो क्या मुझ पर शक करेंगे? जबकि कोई आपको पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करते हैं लोग आपसे तो। और आपने तो देख लिया होगा क्या सोचते हैं लोग आपके मुतालिक। अगर इस किस्म की बातों पर इतना एतबार करती हैं तो फिर अपने बारे में की गई बातों पर भी गौर करें। इस बनाए गए इदारे से आप फरिश्ता नहीं बन सकते। और हाँ, एक और बात, कौन क्या सोचता है क्या कहता है मुझे इसकी परवाह नहीं। बस आका की मोहब्बत ही काफी है मेरे लिए, बिल्कुल आपकी तरह। इब्राहिम पाशा, एक दिन जरूर यहाँ से जाना होगा, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए जाना होगा। और इस बात में कोई शक नहीं। सिर्फ एक चीज के बारे में मैं सोचती हूँ कि आप जाएंगे कैसे यहाँ से, अपने कदमों पर या फिर लोगों की ठोकरें खाते हुए जाएंगे? आप बताइए कि आप किस तरीके को तरजीह देंगी? इब्राहिम पाशा, तो मुझे समझे नहीं अभी, शायद मेरा तो सिर्फ जनाजा ही जाएगा यहाँ से। हाँ। मेरा भी। आका ने इसका मुताला किया है क्या? जलालजादे ने बताया कि नहीं किया। जाहिर है उन्हें इस फरमान की खबर नहीं है मलिका। अयाज पाशा, शानदार काम किया। ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा करके गलती नहीं की मैंने। आपकी नवाजिश है मलिका। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? इब्राहिम पाशा खुद को शाहीन समझते हैं और मुझे एक कबूतर। उनके ख्याल में मैं कमजोर और लाचार हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो मुझे कबूतर ही समझते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में मेरा सिर्फ एक ही काम रह जाता है अयाज पाशा, खबर पहम पहुंचाना। शुरू कर दिया और फिर पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शहजादे ने मलिका, सुंबुल आगा, जहांगीर, नाज़ली, शहजादे को अंदर ले जाओ। लेकिन अम्मी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। शहजादे, मैं शाम को दोबारा सुनाऊंगा आपको। सुंबुल आगा, मलिका, कुछ देर पहले मैंने शाह सुल्तान को देखा। इब्राहिम पाशा से बातें कर रही थी। पाशा उन्हें मेरे खिलाफ वरगला रहे होंगे यकीनन। सुंबुल, तुम तो जानते होगे इब्राहिम पाशा से कैसे ताल्लुकात हैं उनके। क्या वो उन्हें मेरे खिलाफ कर सकेंगे? कसम ले ले मलिका, मेरा नहीं ख्याल। बहुत पहले की बात है कि क्या? बताओ मुझे। मरहूमा वालदा सुल्तान के साथ मनीसा महल जाना हुआ था मेरा, और शाह सुल्तान भी हमारे हमरा थी। काफी अरसा वहाँ कयाम रहा। इब्राहिम पाशा तब शाही परदार कहलाते थे। वो दोनों तमाम दिन शाही बागीचे में गुजारते थे। वो ढेरों बातें करते और घूमते रहते थे बस। यकीन कीजिए। हाँ, सफीर से जो मुज़ाकरात हुए थे उसकी नकल आका को फरहम नहीं की थी क्या? जी मलिका, दी थी, वो मुताला कर चुके। तो फिर क्यों आका इब्राहिम पाशा से मिल रहे हैं अभी तक, जैसे कि कोई बात ही ना हुई हो? मुझे आका ने बुलवाया था। उसके मुताले के बाद वो मुझसे मजीद मालूमात मांगेंगे मेरा ख्याल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई और होता तो कब का सर कटवा चुके होते उसका। लेकिन इब्राहिम पाशा कुछ भी कर ले, माफी मिल जाती है हमेशा उससे।
आका। मैं सुलेमान शिकार किए बगैर शिकारी नहीं बन सकते। शिकार एक फन है, इल्म रियाजी की तरह आदाद और हिंद से शुमार करने वाला, सितारों के जायचे से दिलों के जायचे देखने वाला, तारीकियों में राह ढूंढने वाला, असर अंगेज मौसीकी से शिकार करने वाला, कमान से तीर का निशाना लेने वाला, हमेशा दोस्त का मुतलाशी रहने वाला, यारे तरहदार ढूंढने वाला, मनीसा में शिकार करने वाला, तन्हा कोशा नशी सुलेमान, मुहिब्बी मेरे गम गुसार। मेरे दोस्त, मैंने अपना दिल तुम्हारी जानिब भेज दिया है, इसे किसी भी तरह लौटाना मुमकिन नहीं। तुम्हारी कमान जब मेरी तरफ तीर फेंकेगी, उसकी नोक मेरे दिल के आर पार ना हुई तो भी जान दूंगा मेरा दिल ले चुके हो। तुम्हारा मकसद मेरी जान लेना ही था। मैं तुमसे पहले ही अपनी जान तुम पर निछावर कर चुका हूं। शहजादे, आप ठीक तो हैं? शहजादे, पागली, तुम्हारा मेरी जिंदगी पर कर्ज है। मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? शहजादे, मेरी जान भी आप पे फिदा है। सुलेमान, आप ठीक हैं? आका, अच्छा किया तशरीफ ले आए, शर्फ है मेरे लिए। बेहान अब तक क्यों नहीं आई? हाँ वाकई, उनकी कोई खबर नहीं आई अब तक। वो कल तक आएंगी, बहुत याद आ रही है वो। आप मेरे आका है, लेकिन अब मेरे भाई नहीं रहे, मेरा कोई रिश्ता नहीं आपसे। और हम चलें? जैसे आपकी ख्वाहिश। आका, कुछ देर और ठहर जाते। बाद में आ जाऊंगा। हम भी चलते हैं। आपको नहीं जाने दूंगी, आपका कमरा भी तैयार है। आज रात लुत्फो पाशा के हमरा यहीं कयाम करें। अच्छा ठीक है। क्या हुआ सुलेमान? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ठीक नहीं लग रहे। आपको देखकर परेशान हो रही हूं। परेशान मत हो, थकावट है कुछ। इब्राहिम पाशा को देखा था आपने? चेहरे पर कैसी शादमानी थी, आंखों से गुरूर छलक रहा था। इतने हादसों के बावजूद आप कैसे इतना करीब हो सकते हैं उसके, ये समझना नामुमकिन है। मैं सोना चाहता हूं राम।
है।